celebrate my book with everyone that's so dear to me. Why this book is because everyone asked me, what about your next book? And I was like, what am I so passionate about? And the only one word that came to my mind and my heart was movies. And this journey has been beautiful, exceptional. And in spite of the lows that one has, there have been such amazing people in my journey that have made it so amazingly beautiful for me. ये किताब उनके लिए है. बहुत बार हमें मौका नहीं मिलता ये कहने का कि हम गप्पे मारते हैं, मस्ती करते हैं, we just chat, we work together, but never do we get an opportunity to say, hey, listen, you really matter a lot to me and you mean a lot to me. So this book is for those very special people who mean the world to me. ये मेरी तरफ से सबको शुक्रिया है. बच्चन साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी for writing the foreword. He really made it special last time was शबाना जी और इस बार हमने role reversal किया. I want to thank Penguin जिन्होंने ये मेरी दूसरी किताब छापी. I want to thank विकास तोमर that's विकास तोमर. ये जो कवर है ये इन्होंने तस्वीर खींची है इसकी, so everyone's really liked it, so thank you. And thank you Vaishali Mathur, who's been my editor दूसरी बार, and I'm missing her today because she's in Delhi. पिछली बार हमारे साथ थी यहाँ पर लॉन्च पे. अब सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं सबको एक एक करके उन लोगों से मिलाऊँ जितने भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं. I met a director after Veer Zara. I didn't meet him that time. I met him much before. We did an ad together. And Veer Zara के बाद एक ऐसा वक्त था जब I was not working at all. I stopped taking on movies. And it was like sab Punjabi, sab chulbule roles. And there comes this phone call. And this director says, I want you to be cast as Jalebi. So I said, is it a Punjabi vivacious girl? He said, no. I said, then why are you casting me? He said, because I think you can carry it off. And then I met him. He gave me the role that was totally different from what I've ever done before, what I ever thought I could do. And it wasn't just once. It's been many times. He's always laid his faith in me as an actor, given me my most landmark movies. बुलाऊं आपको राकेश जी, राकेश मेहरा प्लीज आइए ना, कुछ लफ्ज हमारे साथ शेयर करिए ना. ये किताब आप सबकी है, सो प्लीज आइए. Yeah, she always puts me in very difficult situation. Set पे हो, अरे God. हाँ, कुछ तो बात मानती नहीं है, सेट पे नहीं मानती. जो सीन दो उसका उल्टा होता है, जो लाइंस दो वो अपनी लाइंस. फिर पता नहीं, फिर भी जादू, तो मैं चुप ही रहना मेरे को वो बेटर है. वो मैं बहुत पहले सीख गया था, फर्स्ट टाइम मिल के ही. दिव्या, इससे हम्बलनेस that normally people talk about themselves, and why not? I'm not saying that's wrong, but they talk about their work, and here you have spoken about the sum of things, how and while you are the whole, you've given all of us that little place, एक इतनी बड़ी हवेली में एक छोटा छोटा कमरा हम सबको दे दिया. But friends, let's not mistake her humbleness for she's extremely fearless. And what can I say about fearlessness of her? There's I'm not such a good orator, but there's a Subramanyam Bharati poem from
He's taken from the Vedanta and taken it further, which, when I see you, it always echoes in my mind. जावेद जी माफ़ी चाहूँगा, सब उल्टा सीधा होने वाला है. हाँ, मतलब after many narrations and everything, after 15 minutes after narrating something to me, telling about a song, he doesn't want to see my face again. कि यार ये इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये क्या कर रहा है ये. तो उन्होंने लिखा था कि ऑन फियरलेसनेस बेस्ट डिस्क्राइब फॉर दिव्या, कि समझ संसार मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, समझ संसार मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, कलंक और उपहास की मुझ पे वर्षा हो. मेरे दोस्त मेरे भोजन में विष ही का न मिला दें, अस्त्र शस्त्र से व्यूहबद्ध मेरे दुश्मन मुझ पे आक्रमण करें, चाहे आसमान ही टूटकर मेरे सर पे क्यों ना गिर पड़े. एक साल जो आपने काम नहीं किया, मुझे ऐसे आपके बहुत साल मालूम है. अपनी जीविका के लिए चाहे मुझे द्वार द्वार अलग ही क्यों ना जलाना पड़े, मेरे दिल में कोई भय नहीं है. दैट्स दिव्या फॉर यू. I think this is going to be a truly emotional evening. Shukriya, thank you. And thank you, Bharti, for always being such an emotional support and right there always. मैं जब पंजाब में अपनी दूसरी फिल्म कर रही थी तो बहुत मुश्किल सीन था और मेरी प्रोड्यूसर मंजीत मान और डायरेक्टर मनोज पुंज एकदम उस स्क्रिप्ट लेकर आए और वो सीन याद कर रही थी. तो 4 बच्चे ऐसे आए उठकर, मैम ऑटोग्राफ. तो मैं कहा भाई बाद में आना, मैं बहुत मुश्किल सीन कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आना. थोड़ी देर में देखा तो बहुत वही लड़कों का रश एक किसी के साथ में था और वो लगे थे उनको अच्छे से सिग्नेचर्स करके उनको चाय वाय पिला रहे थे. एंड दैट वाज मान साहब. एंड आई वाज लाइक, मान साहब आप भी तो मुश्किल सीन कर रहे हो, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते? तो ही सेड, इन्हों ने तो सानू बनाया है, इन्हों टाइम देना बहुत ज़रूरी है. सो आई एम श्योर दिस मच यू अंडरस्टूड, whoever doesn't know the Punjabi, but and I learnt my Punjabi. जितनी भी सब मुझे कहते हैं कि तू बहुत अच्छी पंजाबी बोलती है, उसका श्रेय मैं मान साहब को देती हूँ. बिकॉज मैंने इतनी पंजाबी मुझे पंजाब में इतनी नहीं आती थी जितनी मुंबई में आकर आई है. एंड what I learned from him was lots of humility, lots of love for people around. And ये जब मिलते हैं तो आपके मतलब अपना सर आपके हाथों पर रखते हैं, which I feel मतलब so much love and respect and warmth. I think this is one home that I call mine in Mumbai. And thank you, मान साहब. मैं आपको बुलाऊं स्टेज पर प्लीज. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रान कि आपने मुझे इस खूबसूरत महफिल में इज़्ज़त अफजाई दी, प्यार दिया, सत्कार दिया. आपने 165 पे जो मेरे बारे में लिखा है उसके कुछ अंश आपने पढ़े हैं. मुझे 165 पेज है, मैंने याद है. इतना अच्छा लगा मुझे. और आप लोगों के दीदार हुए इसलिए मैं और भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज जो भी है बहुत ख़ास है. क्योंकि आपके आसमान में चमकते हुए सितारे हैं वो इस किताब में शामिल हैं. और मैं आपके लिए एक अपनी छोटी सी नज़म पढ़ना चाहूँगा. थैंक यू. शबाना जी, एक दफ़ा आप एयरपोर्ट पे, हम एक ही फ़्लाइट में आए थे, आप एक जगह पे खड़े हुए थे. मुझे लगता था कि इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी की. तो मैंने इनके चरणों को स्पर्श करके मैंने बोला कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, घर में जाना चाहते हैं? कहते हाँ, मेरी गाड़ी आई नहीं अभी तक. तो मैं क्या, आइए प्लीज़ इसमें बैठिए. तो वो छोड़ने का सौभाग्य जो था
उनको घर में छोड़ने का सौभाग्य था, वो मुझे आज भी याद है। मैं क्योंकि उस वक्त जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आई ट्रेन टू पाकिस्तान, तो उसमें हमको देखा तो बच्ची सी थी बिल्कुल, अभी भी बच्ची हैं, अभी बची हैं। मैंने वो एक छोटी सी गल याद आ रही है कि पंजाबी का जो अंदाज है वो एक अलग ही है। 1947 के बाद ट्रेन टू पाकिस्तान याद आ गया मुझे इस बात से कि वहाँ से केदीप साहब जो बहुत खूबसूरत कॉमेडियन थे पंजाबी के, गुजर गए हैं। उन लोगों ने एक वाक़या सुनाया कि मैं जब पाकिस्तान से या 1947 के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो मेरा बाप है जो मुझे मेले में ले गया, मुक्तसर के मेले में। तो वहाँ जाके मेरा दिल किया और लड्डू जलेबियाँ पक रहे थे मेले में, तो अलग अलग एक अंदाज है ना। तो उसमें मैंने कहा बापू मुझे समोसा ही ले दे। वो कहना ये कोई समोसे है, समोसे रह गए पाकिस्तान, चल बापू आप रसगुल्ला दे दे। कहता कोई रसगुल्ले, कोई खोण का मतलब तो है नहीं सी मनदीप। कहता समोसे रसगुल्ले तो रह गए पाकिस्तान। खैर वो सो गए। दूसरे दिन स्कूल जाना था तो बाप ने उठाया कि उठा ही नहीं है ये लड़का। तो उसने उठाया और कहता उठो बेटे चल स्कूल चल। कहता केड़े स्कूल, स्कूल रह गए पाकिस्तान। एक वट के चपेड़ मारी और कहना मैं तेरा प्यो है। वो कहता तू कहता प्यो है, प्यो तो रह गए पाकिस्तान। सो ज़बान का अपना एक मज़ा है। और मैं थोड़े से बोल आपके लिए। कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां, कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों वार दियां। अपने हिस्से दी दुनिया सबसे बड़ी दिल की दुनिया होती है, और दुनिया कुछ भी नहीं है। जेब भी ऐसे पासे लगी होंगी है, पैसे भी ऐसे पासे होंगे हैं और दिल भी ऐसे पासे होंगे। या दिल से इस्तेमाल कर ले, या ये दौलत है तेरी जिथे मर्जी खर्च लवी, ये जान गरीबां दी जिथे मर्जी वरत लवी। सोने तेरी पहुंच खुदा तक है, जदों मुश्किल पै जावे बंदे नूं परख लवी। कदे मुश्किल पै जावे बंदे नूं परख लवी। सो मैं नज़म नूं विच ना तोड़दे होए, कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों वार दियां। तू जम्मी तां मापे कहण पर आई ऐ धीए। बच्ची पैदा होती है तो उसको पहले ही पराई कहना शुरू कर देते हैं। तू जम्मी तां मापे कहण पर आई ऐ धीए, सौरे घर विच कहण बेगानी जाई ऐ धीए। सौरे घर विच कहण बेगानी जाई ऐ धीए, केड़े कर दी आखां तैनू की सत्कार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया मैं तैथों वार दियां। एक धोबी लई सीता मां नूं राम विसार गए, एक धोबी लई सीता मां नूं राम विसार गए, जुए विच दरोपतीए तैनू पांडो हार गए। जी करदा मैं अपनी किस्मत तैनू हार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया मैं तैथों वार दियां। सत परा एक मिर्जा बाकी किस्सा कारा ने,
सत परा एक मिर्जा बाकी किस्साकारां ने, कल्ली साहिबां बुरी बनाती मर्द हजारां ने, कल्ली साहिबां बुरी बनाती मर्द हजारां ने, कवियां दी इस गलती नूं मैं किवें सुधार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया मैं तैथों वार दियां। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आपके सामने, आपके अल्फाजों के सामने, थैंक यू। Thank you, Mansa. Thank you, Manjeet ji. I think these blessings and this love I'll carry through my life. This is a truly cherished moment. So, I have only हमेशा काम हम सबको आता है, हम उससे चुनते हैं कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए. There has been one film in my life which I went all out कि मुझे ये करनी है instinctively. मुझे रोल नहीं पता था, मुझे बस फिल्म पता थी और डायरेक्टर पता था, और डायरेक्टर को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी. तो मैंने एक दिन फ़ोन उठाया और उनको फ़ोन किया कि सुनिए, मैंने सुना है आपके इस फिल्म में ये वाला रोल है, तो मुझे करना है. I don't know how I said it. I really am surprised with myself. I could, and I'm glad I did, because I met a thorough gentleman in the process, a friend for life, somebody I bond over on lots of old music, old film music, and somebody who's the sweetest heart, Sriram Raghavan. Yes, you have to come here, and I will not stare at you. Sing. Thank you. But I will say one thing. एक बार actually we did only one film together, but उसके बाद ना we always meet. I mean, almost once in 3-4 months we meet. Whenever I have a story which I am trying to sort of check out, कि ये काम कर रहा है कि नहीं, I'll narrate to. I've narrated Andhadhun to her, and even the other things I'm doing and so on. Sort of we have become friends, you know. So that way I'm very happy. I've read parts of the book, and I love the way, you know, each story is, you know, like somewhere at the end of it you get a lump in your throat, you know, and she's that kind of person, fun and crazy, and so we become friends. Now मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, but since you asked about a song, not that I'm going to sing, but once she had called us home, so सब they were singing, she had a karaoke thing and all that, and she's written about that in the book. But what she didn't write is at some point after 2-3 drinks के बाद मैं भी थोड़ा गाने लगा. Otherwise people are always singing in very, you know, very like pujas, they all sing very nicely and good voice and all. But I sing like Kishore Kumar type songs, and we are next to his house, you know. Then she rather than close the windows, I remember, on karaoke. मैं गाऊंगा नहीं, like better. Thank you.